नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बनवर्ड में आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उसमें एक अफ्रीकन सन्यासी ने एक क्रिश्चियन बंदे को कैसे पछाड़ा। जब उसने हिंदुइज्म पे कुछ सवाल किए तो उस सन्यासी ने कितने अच्छे से उस बंदे को पछाड़ कर रख दिया। देखिए इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Cradle of humankind and all those things. Reading about the origins of the Hindu faith and those things had me questioning, and I'm not sure if there could be an argument that life could have started in India or around there. But I want to read something I found online. There's a river called the Indus, or the Indus River. People don't know. And again, if this is not correct, people will correct me. You can correct me if you know a different knowledge. There's the Indus River. People can go find it. They can go Google it. Which, according to the people of the time, was known as the Sindhu River. And there were Persians there, so it became India. So there's a link between Hindu and India because they come from the same word, linking them to the Indus River. Then you look at these, you speak about the oldest language being Sanskrit. Do you think there could be an argument that life actually started around those sides of India? Yeah, because the worldview was that the whole planet at some point is known as Bharatvarsha. ये वीडियो है हाल ही में हुई एक अफ्रीकन हिंदू सन्यासी और एक फेमस अफ्रीकन यूट्यूबर के बीच इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सनातन धर्म के बीच एक बहुत ही गहन चर्चा की, जिसमें बेसिकली ये अफ्रीकन यूट्यूबर इस वेदों के ज्ञाता अफ्रीकन हिंदू सन्यासी से सनातन से जुड़े कई गहरे प्रश्न पूछता है, जिनमें से ये सबसे पहले पूछता है कि बाइबल के अनुसार सृष्टि के सबसे पहले मनुष्य एडम और ईव थे, लेकिन आप विष्णु और कृष्ण की बात कर रहे हो, तो क्या एडम और विष्णु के इस रूपांतर में कोई समानता है या नहीं? तो इनके इस प्रश्न पर ये अफ्रीकन हिंदू सन्यासी सनातन में बताए गए ब्रह्मांड विज्ञान का ब्रह्म ज्ञान देते हुए तुरंत जवाब देते हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईसाइयों के अनुसार एडम धरती के पहले मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन वेदों के अनुसार सृष्टि की संरचना उन्नत ग्रह प्रणालियों से हुई है और यहाँ पर सृष्टि के सबसे पहले पूर्वज या फिर कह ले मनुष्य ब्रह्मा के पुत्र योगी पुरुष महर्षि मनु थे और मैनकाइंड मानव और मनुष्य शब्द योगी पुरुष मनु से ही आया है, जिन्होंने भारत की पवित्र धरा से सृष्टि की शुरुआत की थी। You spoke about Vishnu. You spoke about Vishnu as Krishna, but for work. And I had two thoughts. The first being Adam from the Bible, and the second one being popular culture and movies today. So when you were speaking about work and the arms, you were almost speaking about the maintainer of the garden. When God created man to work the garden, to preserve and look after the animals. Do you see any similarities with Adam and that version of Vishnu, or not really? Not really. Not really. Adam could be linked to who are the first people on the earth planet. Sure. So the Vedic conception speaks of the universe gets populated from the higher planets. There's planetary systems. Okay. And so the first, you could say, progenitors are called Manus. And actually this word mankind comes from Manu. Manusya, those who come from Manu. Okay. So we have that ancestor, common ancestor, in that the Manus are also different names according to the different time in the universe. Sure, man. Yeah. Okay. So Earth and its history of how it was populated is different from how the universe was first populated. Okay. Yeah, but Vishnu is on the level of Godhead. Like लेकिन दोस्तों, इस अफ्रीकन हिंदू सन्यासी के द्वारा दिए गए इस उत्तर को सुनने के बाद भी ये अफ्रीकन यूट्यूबर अपनी संतुष्टि के लिए इनसे दोबारा पूछता है कि क्या आपको लगता है कि इस बात पर कोई तर्क हो सकता है कि जीवन की शुरुआत भारत में ही हुई थी? तो इनके इस प्रश्न पर ये हिंदू सन्यासी पूरे गर्व के साथ इनको ये बताते हैं कि एक समय था जब पूरे अर्थ प्लेनेट को
भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था और हाल ही में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया का मुख्य भारत नाम रख दिया। भारत दिया है, जो कि इसका असली और प्राचीन नाम है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Yeah, because the worldview was that the whole planet at some point is known as Bharatvarsha. Recently, Narendra Modi is renaming India to this name Bharatvarsha. Is that something that's happening? Yeah, Bharat is becoming. India's name is going to change Yes. because you're saying India's name. इंडिया तो हमें अंग्रेजों ने नाम दिया है, South हमारा Africa. This wasn't really a कंट्री का नाम name. तो भारत ही है। We're gonna go back to actually what It was called. Which is? Which is Bharat. 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 So the Vedas, the Vedic knowledge and the culture thereof, which is known as Sanatan Dharma, or Sanatan means eternal, Dharma means codes of conduct. इतना तो भारत के भी सन्यासी को नहीं पता होगा। Behavior, yes, Dharma, good which is one of the principles of Hinduism. और सबसे ज्यादा गर्व की बात तो तब हुई जब इस वेदों के ज्ञाता हिंदू सन्यासी ने बहुत ही उत्साह के साथ ये बताया कि सिद्धार्थ गौतम भी हिंदू ही थे, जिनको बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया, जिन्होंने भारत की पावन धरती से ही बौद्ध पंथ की शुरुआत की थी, जो बाद में भारत के सिवाय चाइना, तिब्बत, जापान में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है जो हम सभी को भी बहुत ही जरूरी पता होनी चाहिए और जो इस पूरी वीडियो का मुख्य उद्देश्य भी है, वो ये है कि इस अफ्रीकन हिंदू सन्यासी ने बौद्ध पंथ की प्रशंसा भी उतनी ही की जितनी करनी जरूरी थी। पर जब बात आई सनातन धर्म को सनातन से ही निकले इस बौद्ध पंथ से महानतम बताने की, तो तब इन्होंने ये खुलकर बताया कि किस तरह से बौद्ध पंथ हिंदुओं को वेदों के मूल ज्ञान से दूर करने लगा था, जिसके कारण हजारों की संख्या में हिंदू बौद्ध पंथ को भारत में अपनाने पहले लगे थे। आधे से भी ज्यादा लोग बौद्धिस्ट बन गए थे। कारण सनातन का वैदिक काल नष्ट होता जा रहा था, लेकिन इसी समय सनातन की फिर से वैदिक नींव रखने के लिए भारत में भगवान शिव के रूप आदि शंकराचार्य ने फिर हिंदू धर्म फैलाया था। हिंदुओं को वेदों की ओर लौटाया और बौद्ध पंथ को भारत से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद ये चाइना और जापान में प्रसिद्ध हुआ। पर दोस्तों हैरानी की बात तो तब हुई जब ये अफ्रीकन यूट्यूबर इस हिंदू सन्यासी के सनातन के ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद ये बात खुद कहने लगा कि हाँ, हॉलीवुड मूवीज जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी काफी हद तक सनातन से प्रेरित होती है। और इनको इसी पल ब्लैक पैंथर मूवी का वो सीन याद आता है जब ब्लैक पैंथर के सामने जबारी ट्राइब के लोग ऑल ग्लोरी टू हनुमान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सारी महिमा। लेकिन ये सीन जब हिंदी में इसका डबिंग दिखाया था उसमें नहीं दिखाया था, लेकिन इंग्लिश में ये चीज है। हूँ तो मैं तुरंत प्रेरित हो जाता हूँ, जैसे कि ब्लैक पैंथर मूवी में जबारी ट्राइब का लीडर बाकू ऑल ग्लोरी टू हनुमान कहता है। When I saw the name Hanuman, I immediately got triggered because, again, Marvel Cinematic Universe. And I remember Ukredo Mutu has spoken about how he's once, or I don't know if it was once, he's had meetings with Stan Lee, the founder of the Marvel comics. In Black Panther, there are a group of people in Wakanda called the people of the Gorilla tribe, the Jabari. Jabaris. And Mbaku, who's the leader, who we really liked in the movie, says all glory to Hanuman. And I remember that reference very quickly. ये ब्लैक पैंथर जब इंग्लिश मूवी है उसमें दिखाया है जय हनुमान कहता है वो, लेकिन हिंदी डबिंग में जय हनुमान नहीं कहता है। And the Manus, even terms like karma. और जैसे हमने हमेशा की तरह दुनिया भर के लोगों के द्वारा इस वीडियो पर किए गए कमेंट्स चेक किए तो हम भी बहुत ही ज्यादा उत्साह से भर गए, क्योंकि दुनिया भर के लोग इस अफ्रीकन हिंदू सन्यासी के सनातन के अलौकिक ज्ञान की कमेंट्स में खुलकर प्रशंसा कर रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे वे अपने पिछले मजहब को छोड़कर सनातन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि एक यूजर ने लिखा, मैं और मेरी पूरी फैमिली पहले मुस्लिम थी, लेकिन अब हमने सनातन धर्म को अपना लिया है। सनातन ही सभी सत्य से पहले का एकमात्र सत्य है। इसके बाद फ्रांसिस थॉमस ने लिखा कि मैं एक EX क्रिश्चियन हूँ और सभी मजहबों की स्टडी और सच्चाई खोजने के बाद मैं अब सनातन धर्म को फॉलो कर रहा हूँ और मैं अब स्वाभाविक रूप से दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता में पहुँचा हूँ। तो
तो यहाँ से अब आप क्योंकि ये समझ सनातन सकते हो धर्म कि दुनिया का कैसे सबसे इस पुराना धर्म अफ्रीकन है। हिंदू सन्यासी ने बहुत ही सरल और दिव्य तरीके से सनातन की महानता का प्रदर्शन किया दूसरे मजहबों और पंथों के आगे, जो सनातन से ही कॉपी पेस्ट किए गए हैं। तो अब यहाँ एक पर सनातनी आपकी है जो सबसे सिर्फ जरूरी धर्म चीज है, बची है बाकी इस सब हिंदू रिलीजन है, सन्यासी के पंथ बारे है में जानना। और कुछ ये नहीं। कौन है देखिए इस और वीडियो में कैसे आगे। अपनी यंग एज में सनातन को पूरी दुनिया में प्रमोट करने के उद्देश्य से लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हमने इस हिंदू सन्यासी से पर्सनली बात की। तो इनका नाम है सव्य दास, जो अफ्रीका से है। इन्होंने अपने मजहब को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया हुआ है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।